न्यू टॉपिक विच इज अल्टरनेटिंग सीरीज। अब तक हम सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स देखे, हम अल्टरनेटिंग सीरीज क्या है नहीं देखे। सीरीज इन विच द टर्म्स आर अल्टरनेटिंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव is called an alternating series. Alternating series is denoted by un minus u2 plus u3 minus u4 plus u5 minus up to on infinity। जो यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव साइन है u1 के साथ और जो हमारे पास नेगेटिव साइन है u2 के साथ, एंड हमारे पास पॉजिटिव साइन है नेगेटिव साइन है, इसको हम -1 प्लस 1 के साथ या -1 के साथ डिनोट करते हैं। क्यों हम इसको डिनोट करते हैं? फॉर एग्जाम्पल अवर सीरीज इज 1 माइनस 2 प्लस 3 माइनस 4 प्लस 5 माइनस अप टू सॉन इन्फिनिटी। फॉर एग्जाम्पल ये अपनी सीरीज है 1 2 3 4, इसका nth टर्म रहता n। अब अगर हम सिर्फ समेशन इधर लगा दिए देन दिस विल बी अ पॉजिटिव सीरीज whereas n is equal to 0 to infinity। सिर्फ अब अगर हम n लिखे तो ये पॉजिटिव सीरीज हो जाती। तो हमको ये प्लस साइन, ये माइनस साइन, ये प्लस साइन, ये माइनस साइन अगर डिनोट करना है तो हमको -1 un के साथ मल्टीप्लीकेशन में रखना पड़ता। सो अल्टरनेटिंग सीरीज का डिनोशन समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी -1 इंटू un, ये रहेगा अपना डिनोशन। मतलब हम अल्टरनेटिंग सीरीज को -1 इंटू un जो भी हमारा सीरीज से आता। y -1 हम -1 ही क्यों रखते? why? Because minus, if I substitute n is equal to 0 here in this series, then I'll get -1 into 0 which will be 0 plus -1 into 1 plus -1 into 2 plus -1 into 3। So if I solve this I'll get -1 plus 2 minus 3 plus 4। सो ये जो प्लस माइनस ये जो ऑल्टरनेटिंग है इसका डिनोशन रहता -1 और ये जो n है दिस विल बी द nth टर्म विच वी आर गेटिंग फ्रॉम our series. Now let us see what is Leibniz test. Leibniz test is for alternating series. Leibniz test alternating series के लिए है। Leibniz test क्या है? Let summation of un be alternating series. Let summation un be alternating series. Alternating series is denoted by summation -1 just now I said. Then it is convergent. This will be convergent if un is greater than or equal to un plus 1, first condition. Second condition, limit n tends to infinity, un should be equal to 0. It is not convergent if any of this condition fails. We cannot say that Leibniz test is divergent, but we can say that it is not convergent. अगर ये दो कंडीशंस में से कौन सी भी एक कंडीशन अगर सेटिस्फाई नहीं हुई, हम ये बोलते कि लेब्नाइज टेस्ट इज नॉट कन्वर्जेंट। फर्स्ट हम दो केसेस में ये क्वेश्चन को सॉल्व, ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना रहता। फर्स्ट हम un ग्रेटर देन और इक्वल टू un प्लस 1 फाइंड करना। लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, un को लिमिट अप्लाई करने के बाद इफ यू आर गेटिंग 0, if this both conditions are satisfied, then we can say that the given series is convergent. Let us solve an example problem for Leibniz test. Test the convergence of series, yeah, discuss the convergence of series summation -1 into n by n plus 1. Note here, I forgot to say you note. What is the note for this Leibniz test? Whenever you see this term -1, I think notice here. Yes, note
whenever this series is applicable, yeah, this test is applicable if alternating series is given. Whenever alternating series is given, ये test applicable रहता. As I said in many test previous videos में भी मैं आप लोग को बतलाया कि he'll not mention us कि do this problem using necessary test, comparison test, p test. हमको क्वेश्चन देखकर आइडेंटिफाई करना रहता कि कौन सा टेस्ट एप्लीकेबल है. सो दिस टेस्ट इज एप्लीकेबल इफ अल्टरनेटिंग सीरीज इज गिवन टू अस. अगर हमारे पास अल्टरनेटिंग सीरीज है, उसके थोड़े टर्म्स पॉजिटिव है, थोड़े टर्म्स नेगेटिव है, देन हम लेबनाइट्स टेस्ट अप्लाई करना है. और un कंटेन्स, अगर आपके पास un में -1 पावर n का टर्म दिख रहा, या -1 पावर n प्लस 1 का टर्म दिख रहा, या -1 पावर 2n प्लस 1, ऐसे टर्म्स अगर आपको दिख रहे un के साथ, then you can apply Leibniz test. So let us see. Here we can see that -1 power n is given to us. So हम ये समझ गए कि ये alternating series है. For alternating series we need to apply Leibniz test. So you should write, hence summation of un is an alternating series, is an alternating series. Hence we apply Leibniz test. Statements will be very much important. We apply Leibniz test. What is Leibniz test? First a condition हमको satisfy करना है, un must be greater than un plus 1. First we know that our un is n by n plus 1. प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त आप ये -1 पावर n भूल जाना. यू नीड टू कंसिडर दिस un ओनली. ये un कंसिडर करके हमको फाइंड करना रहता. तो un है n बाई n प्लस 1. देन आवर un प्लस 1 विल बी, जहां पर भी n है वहां पर n प्लस 1 लिखना है. n प्लस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 बाई n प्लस 2. ये आपका un है. सो un मीन्स n बाई n प्लस 1 is greater than n plus 2 by, sorry, n plus 1 by n plus 2. If I am assuming n to be 1, अगर मैं n की वैल्यू 1 ये गिवन स्टेटमेंट में सब्स्टिट्यूट करा, लेट अस सी un is greater than or equal to n plus 1 होता या नहीं. 1 by 1 plus 1 is greater than 1 plus 1 by 1 plus 2, which is equal to 1 by 2 greater than 1 plus 1 is 2 divided by 2 plus 1 is 3. So 1 by 2 will be 0.5. So 0.5 and 2 divided by 3 will be 0.6. 2 divided by 3 will be 0.6. To this a condition we can also write this a. हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, un greater than un plus 1 अगर इधर आया, then that will be minus of un plus 1, which is greater than 0. So here un value over here is 1 by 2 minus 2 by 3 is greater than 0. So this condition satisfies. So b condition क्या है? Limit n tends to infinity un by un plus, sorry, un, limit n tends to infinity un, which is equal to limit n tends to infinity un हमारे पास है n by n plus 1. एज आई सेड, लिमिट अप्लाई करने से पहले न्यूमरेटर में हाईएस्ट डिग्री टर्म और डिनोमिनेटर में हाईएस्ट डिग्री टर्म हम कॉमन निकालना मस्ट है. सो दिस n और दिस n गेट्स कैंसिल. अगर हम n की जगह इंफिनिटी डालें, 1 बाई 1 प्लस इंफिनिटी, 1 बाई इंफिनिटी इज 0, सो 1 बाई 1 प्लस 0 इज 1. सो हमको लिमिट अप्लाई करने के बाद लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी un की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आई, देन according to by Leibniz test we can say that the given summation of un is not convergent.
Why? Because we have one condition. If limit n tends to infinity, un if it is equal to 0, हम बोल सकते कि वो कन्वर्जेंट है. अगर un नॉट इक्वल टू 0 है, हम बोलते कि नॉट कन्वर्जेंट है. Let us solve one more example problem for Leibniz test to understand this properly. Test the convergence of series 1 minus 1 by 2 plus 1 by 3 minus 1 by 4. एज आई सेड, हम अगर सीरीज ऑल्टरनेटिंग है प्लस माइनस अगर हमको डिनोट करना है, देन समेशन -1 हम लिख देना. दिस विल डिनोट +1 माइनस प्लस, एंड जो भी हमारे पास 1 है, 1/2 है, 1/3 है, 1/4 है, इसका nth टर्म फाइंड करना है. un हम फाइंड करना है, un या an कुछ भी आप बोलिए. कॉमन ओवर हियर इज न्यूमरेटर. हर जगह न्यूमरेटर में 1 है, 1 1 1 1, सो हम 1 यहाँ पर कॉमन लिख लेंगे. और डिनोमिनेटर में 1 2 3 4, हमको मालूम सम ऑफ नेचुरल नंबर्स का nth टर्म है n, using a formula a plus n minus 1 into d, where a is first term which is 1, और ये लोग के बीच में कॉमन डिफरेंस है 1 which is 1. 1 plus n minus 1 plus 1 minus 1 cancel n. So अपना un है 1 by n. So we need to satisfy two conditions. First condition, un is greater than un plus 1. ये एक कंडीशन है, या un is greater than or equal to un plus 1 भी आप यूज कर सकते. सो दिस इज फॉर्मेलिटी, ये कैसा भी सेटिस्फाई होती. हम un लिख देंगे 1 by n which is greater than 1 by n plus 1. Okay, let's leave this here only. B condition है limit n tends to infinity un. हम un को लिमिट अप्लाई करना है. लिमिट n tends to infinity un हमारा है 1 by n which is equal to, अगर n की जगह में infinity डाला, 1 by infinity which is equal to 0. 1 by infinity is 0. Limit n tends to infinity un I am getting 0. Limit n tends to infinity un में को 0 आया. According to Leibniz test, if limit n tends to infinity un is 0, then the given un is convergent. हमारा जो given un है which will be convergent. Let us solve more example problems which are little bit tough. Test the convergence of given series. We need to test the convergence of given series. Example problem number 3. un is equal to 1 by 2 to the power n plus 1. This is our un. So first condition हमको a condition satisfy करना है. A condition will be un must be greater than un plus 1. तो un है हमारा 1 by 2 power n plus 1, वो कैसा भी ग्रेटर देन ही रहता n plus 2, मतलब जहां पर भी n है n plus 1 लिखना है, plus 1 will be plus 2. B कंडीशन हमारी है लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी un which is equal to लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, जो हमारे पास un है which is 1 by 2 power n plus 1. अगर हम n की जगह इंफिनिटी डालें, 1 by 2 power infinity, anything power infinity is infinity, 1 by infinity will be 0. Hence limit n tends to infinity un की वैल्यू हमको 0 आई. देन अकॉर्डिंग टू लेब्नाइट्स टेस्ट, given series या given un is convergent. Okay, let me solve one more example problem. Test the convergence of given series, which is example problem number 3. This will be our last example problem. Test the convergence of given series summation -1 power n divided by into n divided by n square plus 1.
फर्स्ट कंडीशन लेबनिट्ज टेस्ट की है कि un मस्ट बी ग्रेटर दैन un+1। un हमेशा ग्रेटर दैन रहना un+1 से। un over here is n divided by n square plus 1, greater than un+1 will be n+1, n+1 whole square plus 1। ये कैसा भी ग्रेटर दैन ही रहता, दिस इज जस्ट फॉर्मेलिटी, छोड़ देना हमको ऐसी। बी कंडीशन है लिमिट n tends to infinity un which is equal to limit n tends to infinity, what is our un, n divided by n square plus 1। हमको अगर लिमिट अप्लाई करना है तो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से हाईएस्ट डिग्री ऑफ n कॉमन निकालना, तो ऊपर तो n ही है, नीचे n स्क्वायर है, अगर हम कॉमन निकाले तो 1 + 1 by n स्क्वायर होता। दिस n एंड दिस n गेट्स कैंसिल। अगर हम लिमिट अप्लाई करें तो 1 by infinity into 1 + 1 by infinity square, 1 by infinity into anything will be 1 by infinity, 1 by infinity will be 0। same limit n tends to infinity, if un is equal to 0 then our given series is convergent by Leibniz test। by Leibniz test the given series is convergent। so this was Leibniz test। after Leibniz test there is one more important topic which is absolute convergent, conditionally convergent। we'll solve some problems on absolute convergent and conditionally convergent। absolute convergent and conditionally convergent ये टॉपिक भी मेनी क्वेश्चन पेपर्स इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 में बहुत बार पूछा गया है। this is also very important topic, this can be a 90% question in every question paper of mathematics। absolute convergent and conditionally convergent। what is absolute convergent, what is conditionally convergent, let's see। absolute convergent, let summation of un be a series of positive and negative terms। जैसा कि ये टेस्ट में लेबनिट्ज टेस्ट भी हमको अप्लाई करना रहता, तो ये सीरीज पॉजिटिव और नेगेटिव टर्म्स की रहना जरूरी है, मतलब दिस सीरीज मस्ट बी अल्टरनेटिंग सीरीज। ओके, द सीरीज इज सेड टू बी एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट। हम सीरीज को एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट है तब बोलते इफ समेशन ऑफ यूएन इज कन्वर्जेंट। अगर हम लेबनिट्ज टेस्ट अप्लाई करें, जो हमारे पास समेशन यूएन है अल्टरनेटिंग सीरीज, अगर हम उसको लेबनिट्ज टेस्ट अप्लाई करें, अगर हमको वो कन्वर्जेंट आया और हम वही सेम सीरीज को मॉड अप्लाई करें, मॉड अप्लाई करने के बाद वो सीरीज पॉजिटिव टर्म्स की हो जाती, उसमें नेगेटिव टर्म्स नहीं रहते, देन अगर हम उसको मॉड अप्लाई करें देन वी नीड टू सी विच टेस्ट इज एप्लीकेबल आफ्टर अप्लाइंग मॉड। अगर न्यूमरेटर हाईएस्ट डिग्री डिनोमिनेटर हाईएस्ट डिग्री सेम है देन हम नेसेसरी कंडीशन अप्लाई करते हैं, या उसमें एक्स टर्म है तो रेशियो अप्लाई करते हैं। तो मॉड लगाने के बाद वी नीड टू सी विच टेस्ट इज एप्लीकेबल। अगर मॉड लगाने के बाद हम टेस्ट करें उसका कन्वर्जेंस, अगर कन्वर्जेंट आई हमको वो सीरीज, then we can say that the series is absolute convergent। हम तब बोलते कि the series is absolute convergent। okay, अगर हम mod if the series is said to be conditionally convergent, हम सीरीज कंडीशनली कन्वर्जेंट कब है बोलते हैं, तब ऑल्टरनेटिंग सीरीज को अगर हम लेबनिट्ज टेस्ट अप्लाई करें, आपको अगर कन्वर्जेंट आया देन वही सीरीज को मॉड अप्लाई करने के बाद, कोई दूसरा टेस्ट अप्लाई करने के बाद अगर डाइवर्जेंट आया देन वी कैन से दैट द गिवन सीरीज इज कंडीशनली कन्वर्जेंट। mod un is different from summation of mod un is different from summation of un। what is summation of un? summation of un है पॉजिटिव और नेगेटिव टर्म्स की सीरीज, पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्म्स की सीरीज है समेशन यूएन। और मॉड समेशन यूएन है अगर हम कौन सी भी सीरीज को मॉड अप्लाई कर दिए दैट विल बी ओनली अ पॉजिटिव सीरीज। तो अगर पॉजिटिव टर्म्स नेगेटिव टर्म्स टुगेदर है एक सीरीज में तो जाहिर है हम लेबनिट्ज टेस्ट अप्लाई करते।
अगर हम उसको मॉड अप्लाई कर दिए तो वो सिर्फ पॉजिटिव टर्म्स है। वी नीड टू सी कौन सा टेस्ट एप्लीकेबल है वो सीरीज के लिए, whether comparison is applicable, whether p test is applicable. We need to see and apply test according to our un. उसके बाद हम जस्टिफाई करना रहता whether our series is absolute convergent या whether our series is conditionally convergent. Okay, example problem number 1, proof that the series is conditionally convergent. हाँ, यहाँ पर हमको नोट डिस्कस करना था। इन एवरी टेस्ट आई सेड यू नोट, मैं आपको नोट बतलाया कि कौन सा टेस्ट कब एप्लीकेबल रहता, क्या कंडीशन अगर अपना यूएन सेटिस्फाई करा तो कौन सा टेस्ट एप्लीकेबल है। फॉर एग्जाम्पल, इफ योर सीरीज इज इन द फॉर्म ऑफ 1/n⁻p, अगर आपकी सीरीज 1/n⁻p के फॉर्म में है देन यू विल बी अप्लाइंग p टेस्ट। अगर न्यूमरेटर हाईएस्ट डिग्री टर्म, डिनोमिनेटर हाईएस्ट डिग्री टर्म सेम है, यू विल बी अप्लाइंग नेसेसरी कंडीशन टेस्ट। एज आई सेड कि कौन से भी क्वेश्चन में ही विल नॉट मेंशन अस डू दिस टेस्ट, सिवाय एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट और कंडीशनली कन्वर्जेंट के कंडीशन में। इन दिस ही विल से अस प्रूव दैट द सीरीज इज कंडीशनली कन्वर्जेंट। उन्हें हमको बोलता कि हम प्रूफ करना कि सीरीज कंडीशनली कन्वर्जेंट है, या he'll say us to prove that the series is absolute convergent, या he'll say us to prove that the series is alternating, the series is absolute या conditionally। हमको ये तीन कंडीशंस उन्हें देख के पूछता कि हमको बतलाना है कि सीरीज एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट है या कंडीशनली कन्वर्जेंट है। सो इन दिस क्वेश्चन ओनली, इन दिस type of test only, he'll ask us to solve this question using this test। सिवाय इसके कौन से क्वेश्चन में भी, कौन से टेस्ट में भी he'll not ask you। so let us solve this question। पहले हमको mod summation of un अप्लाई करने से पहले un का कन्वर्जेंस टेस्ट करना है। as we can say that this is an alternating series, तो alternating series को हम -1/n से लिखते हैं। न्यूमरेटर में 1 इज कॉमन तो हम 1 लिख दिए। डिनोमिनेटर में √1 रूट इज कॉमन तो रूट लिख दिए हम। यहाँ पर 1 2 3 4 1 2 3 4 का नेचुरल नंबर का nth टर्म विल बी n। सो इन दिस वे विल फाइंड un and our un plus 1 will be summation of -1/n 1/√n+1। हमको दो कंडीशंस सेटिस्फाई करना है फॉर लेबनिट्ज टेस्ट। एज दिस इज एन अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट तो हमको पहले लेबनिट्ज टेस्ट अप्लाई करना पड़ता। तो फर्स्ट कंडीशन है हमारी un मस्ट बी ग्रेटर देन un+1। हमारा un है 1/√n विच मस्ट बी ग्रेटर देन 1/√n+1। ये कैसा भी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती। अवर सेकेंड कंडीशन इज लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un, हम un को लिमिट अप्लाई करना है विच मीन्स लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/√n। अगर हम n की जगह इंफिनिटी अप्लाई करें देन विल गेट 1/∞। 1/∞ मीन्स 0। हमको आया लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un is equal to 0। according to Leibniz test the given series, the given summation of un is convergent। हमारा जो भी given summation of un है वो convergent है। अब हम जब उसको un अप्लाई कर दिए तब जो भी हमारा un है उसको mod अप्लाई करना है। अगर हम इसको mod अप्लाई करें देन दिस पार्ट विल गो, मतलब ये पूरी पॉजिटिव सीरीज हो जाती। देन हमारा मॉड समेशन ऑफ un हो जाता 1/√n। मॉड समेशन ऑफ un हो जाता 1/√n। लेट मी राइट हियर मॉड समेशन ऑफ un इज 1/√n। सो ये पॉजिटिव सीरीज बन गई। अब वी नीड टू सी विच टेस्ट इज एप्लीकेबल टू दिस सीरीज। अब जैसा कि हमको मालूम ये सीरीज, ये जो भी हमारा nth टर्म है दिस इज इन द फॉर्म ऑफ 1/n power p। हाउ इट इज इन द फॉर्म ऑफ 1/n power p?
we can write root as 1 by 2. So 1 by n power 1 by 2. यहाँ पर p की जगह पे कौन है, 1 by 2 है. As p is 1 by 2, which means p is equal to 0.5, which is less than or equal to 1. When p is less than or equal to 1, we can say that mod summation of un is divergent. हम ऊपर देखे थे, if our summation of un is convergent, अगर हमारा summation of un convergent है और summation of mod summation of un divergent है, then we can say that the given series is conditionally convergent. यहाँ पर देखिए आप, हमारा जो भी summation of un है वो equal to 0 आया. According to Leibniz test, summation of un is convergent. और हम mod अप्लाई करने के बाद हमको यहाँ पर mod summation of un divergent आया. So we can say that if summation of un is convergent and mod summation of un is divergent, we can say that the given summation of un is conditionally convergent. Conditionally convergent. He said us to prove this series is conditionally convergent. यहाँ पर क्वेश्चन में मेंशन था, हम प्रूफ कर दिए कि ये सीरीज कंडीशनली कन्वर्जेंट है. सो लेट अस सॉल्व वन मोर एग्जांपल प्रॉब्लम on this absolute convergent and conditionally convergent. Example problem 2. Check whether the given series is absolute convergent or conditionally convergent. हमको क्वेश्चन में मेंशन कर दिया, हम चेक करना है कि ये एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट है या कंडीशनली कन्वर्जेंट है. एज यू कैन सी दिस इज एन अल्टरनेटिंग सीरीज, हमको इसका यूएन फाइंड करना है. सो यूएन फाइंड करने के लिए ये अल्टरनेटिंग सीरीज है. कौन से भी अल्टरनेटिंग सीरीज के यूएन से पहले वी नीड टू राइट -1 पावर n. और यहाँ पर हम गौर करें अगर, तो 1 1 1 न्यूमरेटर में कॉमन है, सो वी कैन राइट 1 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर, स्क्वायर इज कॉमन इन डिनोमिनेटर. और 1 2 3 4 5 का nth टर्म आता n, सम ऑफ नेचुरल नंबर्स का nth टर्म है n. सो हमारे पास un आया समेशन ऑफ -1 पावर n इंटू 1 बाई n स्क्वायर. सो लेबनिट्ज टेस्ट की फर्स्ट कंडीशन है un मस्ट बी ग्रेटर देन un प्लस 1. व्हाट इज अवर un? 1 by n square will be compulsory greater than 1 by n plus 1 whole square. फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गई. बी कंडीशन इज लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी un. हम अगर un को लिमिट अप्लाई करें तब हमको अगर 0 आया देन दिस इज कन्वर्जेंट. तो 1 by n स्क्वायर, n की वैल्यू अगर हम इंफिनिटी डालें 1 by इंफिनिटी स्क्वायर इज इंफिनिटी, 1 by इंफिनिटी इज 0. हेंस लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी un की वैल्यू हमको 0 आई. अकॉर्डिंग टू लेबनिट्ज टेस्ट अवर समेशन ऑफ un इज कन्वर्जेंट. हमको समेशन ऑफ un कन्वर्जेंट आया. अब हम मॉड समेशन ऑफ un फाइंड करना है. मॉड समेशन ऑफ un मीन्स 1 by n स्क्वायर. ये सीरीज पूरी पॉजिटिव टर्म बन जाती है अगर हम मॉड अप्लाई करें. हियर अगेन दिस इज इन द फॉर्म ऑफ 1 by n to the power p. Here p is our 2. p is equal to 2. p is greater than 1. If p is greater than 1, mod summation of un is convergent. Here according to Leibniz test, summation of un is convergent, and according to p test, mod summation of un is also convergent. If this both are convergent, then we can say that it is absolute convergent. This test is absolute convergent. Here if summation of un is convergent and mod summation of un is also convergent, then we can say that the given series is absolute convergent. So this was some example problems based on absolute convergent, conditionally convergent. और हम देखिए लेबनिट्ज टेस्ट क्या है और हम देखिए अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट क्या है. इफ यू वांट कंप्लीट सीक्वेंस इन सीरीज देन यू कैन गो टू previous videos which are of
introduction to infinite series, necessary condition, comparison, ratio test, rabbit test. Next lecture will be on geometric test, which is 2 marks topic, and Cauchy's nth root test. Thank you. Thanks a lot.